When it is developed in 1972. Where it is developed? Bell Laboratory, AT&T. Okay, so this first point I am going to write here. The C language has developed. Okay, so I am going to show you that person first. Dennis Ritchie. Okay, he is the Dennis Ritchie. So you can see his biography here. He's died now. कब हो गया है? 2011. Okay, 1941 to yes. He is the father. We can say the father of any program, father of the any programming language. राइट उनके साथ केन थॉमसन्स भी थे. सो इनका मेन मोटो था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करना. आल्सो द बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे हैव वर्क हियर. ही इज़ अ डेनिस रिजी एंड फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज. सो BCPL दैट इज़ नोन एज वे देखो Altran is there. It's for programming language first. Altran means Fortran. So in the last class I have shown that is what Fortran also, COBOL, Fortran like that. Then BCPL, Unix, okay. एंड ही इज़ फ्रॉम द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. वर्ल्ड की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. ओके, जैसे मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, दे ऑल आर फ्रॉम द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. साइंटिस्ट. ओके, so he is the person, right? So she has developed in 1972 perfect programming language that is developed in 1972 by Dennis Ritchie. By Dennis Ritchie, RITCHIE. Okay. At where? Bell Laboratory. No one is asked this question. ओके, इंटरव्यू में उतना कुछ ऐसे बेसिक ये वाले क्वेश्चन तो नहीं पूछते, लेकिन यू शुड हैव टू नो दिस आइडिया. फाउंडर तो हमेशा पता होने चाहिए. ओके, AT&T बेल लेबोरेटरी. AT&T, or you can say the Bell Laboratory of AT&T. So what is the AT&T? It's the American Telephone and Telegraph. See, it's the American industry. Or इज इट गिवर एयर? कुछ लिखा है यहाँ पे नहीं है, सो ठीक है मैं ये लिख के देता हूँ यहाँ पे. वेयर? अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी. ओके, यस यस. AT&T बेल लैब. ओके, ये पता होना चाहिए लैब्स. nowadays you can say Nokia lab is there. Okay, American telephone and telegraph. And the next point, see here we are going step by step, basic to total advanced. Now we can say that Dennis Ritchie is known as founder of C programming. Dennis Ritchie is known as the founder of C language. Okay, सो हमको कुछ ऐसा माइंड में रट्टा नहीं मारना है ये सब नोट्स को. जस्ट ऐसे हमको जनरल थिंग्स हम डिस्कस करते हैं ना एक के साथ कैसे, कि वैसे ही हमको याद रखना है ऐसे डिस्कशन से जस्ट. ओके, अभी हमको कुछ एग्ज़ाम नहीं देना है. ओके, हमको कुछ नोट्स में मतलब थियोरेटिकल एग्जामिनेशन वगैरह नहीं देना है. सो ये जो नोट्स है वो जस्ट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू हम दे रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू. सो डिस्कस ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा हमको अराउंड नॉलेज बढ़ेगा. So why the C language is developed? To overcome the problem of B and BCPL programming language. To overcome the problem of B and BCPL programming language, so C language has developed. Right. So I am writing this point here because there is a problem in B and BCPL. Data types are not there, structure are not there, pointers are not there. So that's why the C they research once again and completed and designed the C programming language. So I am writing here it was developed to overcome the problem of it was developed to overcome the problem of
प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रीवियस लैंग्वेजेस, प्रीवियस लैंग्वेज मीन्स कौन से? बी, BCPL, right? B, BCPL, such as B, then BCPL, etc. Okay, to overcome this problem, to overcome the problem of previous languages. So now the combination of B and BCPL completed, they have developed the C programming language, right? So here in this C programming, additional concepts are added, such as data type, structure, pointer, etc. Right? So just I am going to write this note here. C language has developed from three different structures, and many new concepts, and many new concept such as data type, comma, structure, and pointers, etc. So data types, that so data types are what? The type of data, डेटा कौन सा टाइप का डेटा स्टोर करना है, राइट? कीबोर्ड से हम इनपुट लेते हैं, यूज़र एंटरिंग द डेटा, सो विच टाइप ऑफ डेटा, सो यू हैव टू स्टोर द डेटा, कौन सा टाइप का डेटा है, सो वी नीड टू रिक्वायर देयर द डेटा टाइप. द स्ट्रक्चर मीन्स collection of heterogeneous data type, right? Collection of heterogeneous. Suppose student is there, in the student structure we have the different data types, right? Structure is student, so that student को क्या क्या रह सकता है? Structure student I have defined here, struct, actually struct keyword is there, so it's have the some roll number, name, okay, then marks are there for this student. सबको ये फील्ड रहते हैं, लेकिन सबके जो वैल्यू है वो डिफरेंट रहते हैं, तो इसीलिए हम लिखते हैं यहाँ पे, उसको डेटा टाइप भी देना पड़ेगा. रोल नंबर हमेशा हम इंटीजर में लेंगे, नेम हम लेंगे स्ट्रिंग में, सो स्ट्रिंग इज नॉट डेटा टाइप इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू यूज हियर कैरेक्टर अरे, ओके, अरे ऑफ कैरेक्टर्स. And marks, that is always take in the floats or double, okay, and what is the difference between the floats and double, we will see in the data types, don't worry. So the structure is what? Heterogeneous, collection of heterogeneous data type. See, this is the structure. In this structure, integer data type is there, character array is there, float is there. This is a combination of different data types, that is known as structure is a collection of heterogeneous data type. And array is what? Collection of similar type of data. Okay, see here the character array is there, it is array, character array. So all this character which are available here, that is a character. यहाँ पे जो भी हम एंटर करेंगे वो सब कैरेक्टर ही रहेंगे. अगर हमने यहाँ पे इंटीजर लिखा तो सारे जो डिजिट्स रहेंगे वो सारे 20 नंबर्स वो इंटीजर ही रहेंगे, राइट? So array and structure. So this type of problems are available in the B and BCPL, means that is not available there. So that's why the C language, we have overcome this problem and added the new features here, like a structure, data types, pointer. So now in the C language you have the such type of things. So now we can create, we can go with these additional features in the C. Okay, so now again some another points I am going to write here. What is the use then, what we can say about the C language? What is C? So it is a general purpose programming language, because you are learning. देखो C जो है वो 1972 को इस्टेब्लिशमेंट से डेवलप किया है, और नाउ यू आर इन 202 ईयर, ओके, सो इट इज़ ऑलमोस्ट अ 50 ईयर ओल्ड लैंग्वेज, राइट? उस टाइम पे ये सबसे बेस्ट लैंग्वेज थी, बराबर है, आज भी बेस्ट है ऐसा नहीं है, बट
इससे एडिशनल फीचर्स वाले लैंग्वेज मार्केट में आ चुके हैं। So, तो भी हम सी लैंग्वेज क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज इट्स अ बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू डिजाइन द एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? C language is the best programming language to develop the any programming language, क्योंकि C से ही बाकी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हो चुकी है। In Python also that is developed in the C. Okay, so it's the best programming language to develop the compiler of any programming language. So that's why C is very popular. Also the C is a ज़्यादा से ज़्यादा हम मशीन लेवल में इंटरेक्ट करते हैं, तो मशीन लेवल में सबसे ज़्यादा हम उसको यूज़ करते हैं. सो यू कैन go the CRT machine, or you can CT scan machine, you know, CT scan machine, CT scan machine, that is the code is written in the C and C++. MRI machine, okay, MRI machine, सो कंप्यूटर अंदर लग के रहता है, एम आर आई मशीन बाहर रहती है. सो जो कोड लिखा है सॉफ्टवेयर, दैट इज रिटन इन द C and C++, एम आर आई मशीन का कोड, राइट? हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ सी का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज़ लो लेवल में हम करते हैं. व्हाट इज़ हाई लेवल, व्हाट इज़ लो लेवल, वो भी हम देखेंगे. डोंट वरी, कंपाइलेशन इंटरप्रेटर क्या होता है. सो CT स्कैन MRI मशीन में हम कोड सी का यूज़ करते हैं, C and C++. सो दैट इज़ वेरी पावरफुल. देन सो दैट्स वाई अभी भी सी को हम यूज़ करते हैं. ओके, so now we can say what is C. C is a general purpose programming language. It is a procedural oriented programming language. We can say the POP, procedural oriented programming language. It is an imperative programming language, means important programming language. And the most use of C programming language is what? Compiler. To design a compiler. Okay, what is use of compiler? Simply you can see compilation means to finding the errors, right? Finding the errors means what? Compilation. Okay, that is not enough. Okay, if there is a no error, then what is going to be happen? So we can cut that compiler that convert high level code to low level code, high level code to low level code. High level means human understanding, the code which can understand by human or both. मतलब हम जो यूज़ हमको जो समझता है उसको बोलते हैं हाई लेवल कोड, एंड जो मशीन को समझता है उसको बोलेंगे हम लो लेवल कोड. सो हाई लेवल मीन्स ये जो हमने लिखे है ये सब कुछ चीज़ें, दैट इज़ एन हाई लेवल. एंड लो लेवल मीन्स दैट इज़ अ बाइट कोड, 0101 in the form of zeros and zeros and 01. So that can be understood by the machine. So compilation process means what? The conversion of high level code into the low level code. Okay, then we are going to execute. Execute means again low level to high level, that human understanding. ठीक है, जैसे कोई भी हम एक वीडियो हमारे लैपटॉप में या कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1 में स्टोर होता है. जब हम प्ले करते हैं तो हमको हाई लेवल में वो व्यू होता है, like this way. Okay, this is a process. When we start the programming, then I am going to explain once again. So the compiler, to develop the compiler of any programming language, so that is the best programming language. C we can use for the C language to develop the any new programming language. Next, so the C language, by using the C language, what was the main motto of C language? To develop the Unix operating system. Unix operating system. Nowadays, Unix operating system, we can call it as Linux. Why we use the Linux operating system? Why we are not use the Windows operating system? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम क्यों यूज़ करते हैं, या फिर सर्वर में क्यों यूज़ करना पड़ता है? हम विंडोज़ क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं? ओके, अगर आप ATM मशीन में जाते हो, ATM मशीन में जो OS इंस्टॉल है, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज़ व्हाट? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. ATM मशीन में देर इज़ एन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, बट जो सर्वर रहते हैं बैंकिंग के सर्वर, उसमें लिनक्स एडमिन रहता है. ओके, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, लिनक्स सर्वर रहते हो, राइट? लिनक्स सर्वर. Why do you use the Linux server? So it's provide 101% security. So no hacker can break this server, right? So that is more security. That's why in this server they use the Linux operating system or Linux server. So जो banks रहते हैं उनके कनेक्शन, जैसे हमारा अकाउंट बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है,
और मुझे मनी ट्रांसफ़र करने बैंक ऑफ महाराष्ट्र से बैंक ऑफ इंडिया में। सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो सर्वर है वो अवेलेबल है, उस सर्वर से रिक्वेस्ट जाती है दूसरे सर्वर के बैंक को। कौन से? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सर्वर के, या बैंक ऑफ इंडिया से लेके बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सर्वर को जो रिक्वेस्ट जाती है वो एक सर्वर में सारे बैंक एक के साथ अटैच है, मतलब यूपीआई एपीआई से कनेक्टेड है वो। और वो जो डेटा स्टोर है मतलब वो सर्वर में है। उस सर्वर को अगर ब्रेक किया तो सारे कस्टमर का, सारे क्लाइंट का डेटा, पैसे वगैरह सब निकल जाएंगे। बराबर है? जो पेमेंट गेटवे है, यहाँ से क्लाइंट है और ये सेंड कर रहा है यूपीआई आईडी, समथिंग इज देयर। ओके, सो देन इट विल रिक्वेस्ट इज गो टू द सर्वर एंड दैट इज सेंड टू द पर्टिकुलर लोकेशन, मतलब पर्टिकुलर जो भी अवेलेबल है वहाँ पे पर्टिकुलर रिक्वेस्ट वो सेंड करेगा। जब भी जैसे हमने बैंक ऑफ इंडिया से सेंड किया, उधर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में उनके पास जाके रिट्राई करके आपका जहाँ पे अकाउंट है, इनिशियलाइजेशन मीन्स इंस्टेंशिएट आपके बैंक से अकाउंट से होता है, क्योंकि आपका बैंक का अकाउंट महाराष्ट्र बैंक के है और आप किसी और को भेज रहे हो पैसे बैंक ऑफ इंडिया में, तो रिक्वेस्ट आपके ही बैंक को जाएंगे वहाँ से। तो ये जो सर्वर जो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ये क्लाइंट हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, सर्वर रिस्पॉन्स देता है। ये जो सर्वर से जो चलता है सब कुछ चीज़ें, ये सर्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अगर रखेंगे, सो हैकर कैन इजीली ब्रेक दैट। So that's why we use here the Linux operating system. So that means it's provide more security internet bankings. That provide more security in internet banking. So the Linux is more powerful for internet. Okay, Linux is more powerful for the internet. इसीलिए Linux ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए, मीन्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए सी का सबसे मेन मोटो था, और अभी हम लिनक्स ओएस ही सिक्योरिटी के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा मतलब मोस्ट ऑफ द सर्वर, सभी की सर्वर लिनक्स में ही है। सो हैकर इजीली हैक नहीं कर सकते हैं। और जो भी आपने देखते हैं कि बैंक से पैसे निकल जाते हैं या कुछ फ्रॉड होता है, वो सर्वर साइड से लिनक्स से नहीं होता है, वो हैकिंग जो है वो क्लाइंट साइड से होता है। जब आप किसी अनऑथराइज वेबसाइट पे जाते हो और अगर आप अपने बैंक के डिटेल्स वहाँ पे फिलअप करते हो, तो वेबसाइट आपका डेटा स्टोर करके हैकर को भेज देता है या हैकर उसको हैक कर लेता है। वो सर्वर से हैक नहीं होता है, वो आप कहीं ना कहीं कोई वेबसाइट पे जाते हो, कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर लेते हो, वहाँ से डेटा स्टील्ड होता है, वहाँ से डेटा आपका चोरी होता है। ओके, बैंक के सर्वर से नहीं होता है। राइट? सो हैकर क्या करता है कि आपके जो डेटा कोई भी अनऑथराइज वेबसाइट पे जाने के बाद अगर आप एटीएम के डिटेल्स या कुछ भी यूपीआई अगर डाल देते हो, यहाँ से आपका वो जो ले लेता है, चोरी कर लेता है, फिर वो अकाउंट का ट्रांजैक्शन कर लेता है वो रिक्वेस्ट करके। एज अ वही पर्सन आप ही हो, ऐसे टाइप से वो करवाता है। सो लेकिन वो बैंक का सर्वर जो है मेन, वहाँ से हैक नहीं कर सकते। ठीक है? सिर्फ क्लाइंट का डेटा हैक कर सकता है हैकर्स। Okay, so that's why the Linux operating system is very important. So they have created Unix operating system by completely written in the C language. That was the main motto, right? And nowadays that is we can say it is the heart of internet data superhighway. So that's why I'm going to write some points here. So C is what? POP programming language, right? Procedural oriented. So POP points I'm writing here. So definition, we can say the C is was general purpose programming language. So C was developed for high level as well as मशीन लो लेवल, मतलब मशीन में भी यूज़ होना चाहिए और एप्लीकेशन में भी डेवलप करना चाहिए, ये भी इसका यूज़ था सी लैंग्वेज का। सो अगेन आई एम गोइंग टू राइट हियर सम पॉइंट्स। सी प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग इज व्हाट? जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस मीन्स इट इज़ यूज फॉर द ऑल। सो नाउ कंसिडर कि हमारे पास सिर्फ सी लैंग्वेज है, उसके आगे कोई भी लैंग्वेज नहीं है, और मैं आपको जो नोट्स दे रहा हूँ वो 50 ईयर्स पुराने, मतलब उसके टाइप से बता रहा हूँ कि अभी आपके पास कोई लैंग्वेज नहीं है, सी है, तो हम सी को ही बड़ा बोलेंगे उस टाइम पे। ओके, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स जनरल पर्पस, और दैट इज़ यूज फॉर बिल्डिंग द एप्लीकेशन, नॉट अ वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए सी का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि वेब एप्लीकेशन तो हम 1990 के बाद स्टार्ट हो गए हैं। राइट? सो उस टाइम में वेब एप्लीकेशन नहीं था, स्टैंड अलोन सिस्टम। स्टैंड अलोन मतलब एक ही कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर रन होना, उसको हम बोलेंगे स्टैंड अलोन सिस्टम या डेस्कटॉप एप्लीकेशन।
तो ये होगी हाई लेवल एप्लीकेशन एज वेल एज लो लेवल एप्लीकेशन। मीन्स कोई डिवाइस है, हार्डवेयर है, उसमें अगर हमको कोड करना है, सो द सी लैंग्वेज व्हाट यूज, सो दैट्स वाई उसको हम कहते थे कि सी इज़ अ जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन इट्स इज़ अ प्रोसीजरल, it's a procedural. Imperative means important. Computer programming language. Okay. C is a general purpose procedural imperative computer programming language. And the most important, सबसे ज़्यादा तो ये एज अ कंपाइलर के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि सी का यूज़ करके हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं, एज अ कंपाइलर बनाते हैं। और आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा सी का यूज़ किस लिए होता है? कंपाइलर बनाने के लिए होता है, मतलब दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने के लिए। जैसे सिम पाइथन इज़ आल्सो रिटन इन द सी, सी सी प्लस प्लस सी से डेवलप किए, सी प्लस प्लस से फिर आगे जाके सी सी प्लस प्लस के दोनों लैंग्वेज से हम जावा वगैरह एस क्यू एल, बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हो चुकी है। सो हियर आई एम राइटिंग इट इज़ one of the most popular compiler language. It is the most popular compiler language today because it's having high level structure, because of its structure high level, because of high level structure. So because of its structure, okay, oh, because of its structural, and I think it's right, high level abstraction, okay, high level abstraction. So abstraction means, so can see the characteristics, properties, and in terms of in programming language we can see the abstraction. We are going to write uh, big programming. Okay, the concept of programming language means highly having the future high features, we can say abstraction, high features, वैशिष्ट्य, बहुत सारे वैशिष्ट्य, properties like this way. Okay, so high level abstraction, and also the machine independent, it's not dependent. Okay, machine independent feature etc. Okay, so सी के पहले जितने भी लैंग्वेज थे उतने फीचर्स उधर के जी सी में जितने फीचर्स है उसमें नहीं थे, इसीलिए एडिशनल फीचर्स ऐड करके सी लैंग्वेज डेवलप किए। तो इसलिए हम बोलते थे कि सी के आगे कुछ लैंग्वेज थी नहीं ना उस टाइम पे, तो इसलिए बोलेंगे कि हम ये सबसे हार्श लैंग्वेज थी सी, ऐसे बोलेंगे उस टाइम पे। लेकिन बाद में हम सी प्लस प्लस और डेवलप कर चुके। सो इट्स बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन एंड मशीन इंडिपेंडेंस फीचर्स। नाउ दिस टर्म machine independence means what? Machine independence, so not dependent on the machine. Suppose we have one machine, means hardware. I have entered the one code, I have written the code in the C, okay, and the same code I want to use in the another machine, the same code I want to use in the another machine, okay, without थोड़ा सा चेंज करके हम इसमें यूज़ कर रहे हैं इसी मशीन वन and machine 2, and this same code I am using here, and if it is working we can say it's a machine independent, it's not depending on the machine, having the some another feature of this machine one, and there is another machine having the another feature, थोड़ा additional feature, but same program, same code I am going to use here and the same code I am going to use here, but hardware is थोड़ा सा different है, okay. So
this C code is running here and C code is also running here in this another device also. This is device 1 and device 2. We can say this programming language is machine independent. It's not depend on the machine. मशीन कोई भी टाइप के हार्डवेयर क्यों ना रहो, हमारा कोड वहाँ पे वर्क करेगा, राइट। आपके पास कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन हो, कोई भी कंपनी का एंड्रॉयड फ़ोन हो, वहाँ पे एंड्रॉयड ओएस वर्क करेगी, राइट। कोई भी आपके पास लैपटॉप रहो लेकिन उसका जो प्रोसेसर है, मीन्स अगर जनरल है एचपी कॉम्पैक्ट, तो यहाँ पे आप विंडोज़ भी, मतलब आप विंडोज़ भी इंस्टॉल कर सकते हो, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। अब हम बोलेंगे कि वो जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्लेटफॉर्म, हम बोलेंगे उसमें कि मशीन इंडिपेंडेंट है, इट्स नॉट डिपेंडेंट। मतलब वो सिर्फ जैसे मेरे ख्याल से आईफोन की है, वो डिपेंडेंट है। आईफोन की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए उसी का ही हार्डवेयर चाहिए, बराबर है। मैक आईफोन की आईफोन के लिए वही ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, आईफोन के लैपी के लिए वही ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब उसका वही हार्डवेयर चाहिए। वो ऑपरेटिंग सिस्टम हम उधर इंस्टॉल नहीं कर सकते, मतलब मेरे आसूस के लैपी में वो यूज़ नहीं कर सकते, राइट। सो सच टाइप मीन्स वी कैन से, अगर वो हम कोई भी हार्डवेयर में इंस्टॉल कर सकते उसको बोल देंगे मशीन इंडिपेंडेंट, और वो सिर्फ पर्टिकुलर ही उसके हिसाब से चाहिए उसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट। Okay, so C is a machine independent programming language, so we can code in any machine the same thing, so that is having these features. Okay, machine independent, that is additional features. Next point, the C language was developed to write a Unix operating system, to create an operating system, that is what Unix. C language was developed to write the Unix operating system. That was the main motto, Unix operating system, and hence it is strongly associated with Unix. Which is one of the most popular network operating system. So I have already given you the one banking example. So सर्वर में सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, अभी यूनिक्स को हम लिनक्स कहते हैं। सो थोड़े एडिशनल फीचर्स ऐड किए उन्होंने बहुत सारे, लिनक्स सर्वर स्पेशल आता है। तो ये इंटरनेट पर जब भी हम यूज़ करते हैं तो हम सर्वर में लिनक्स का ही बैकग्राउंड हम यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा सर्वर में, जो हमको क्लाइंट को पता नहीं रहता है वो। विच वन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम in a use today. Okay, and it is also the heart of internet data superhighway highway. Okay, so and it's also the heart of, you can say this heart of internet data superhighway. So that's why in the Google server also they use the Linux OS. जो फेसबुक है, गूगल है, इनके बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं वो लिनक्स ही यूज़ करते हैं। सो व्हाट वाज द मेन मोटो फॉर द सी लैंग्वेज? टू डेवलप द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मेन मोटो था। सी लैंग्वेज क्या है? जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिससे हम हाई लेवल एप्लीकेशन बना सकते हैं, लो लेवल भी बना सकते हैं। लो लेवल मतलब होता है कि मशीन में यूज़ करना, हार्डवेयर में यूज़ करना कोड, और हाई लेवल मतलब होता है कि एप्लीकेशन डेवलप करना। So it's a general purpose programming language. Okay, this is the just a short introduction about the C programming. So up to here, any doubts?